ओके सो अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े, वी हैव सीन द बेसिक ऑफ द readability check, phrases, ठीक है, and then we have also seen the echolocation designator, readability scales, and flight rules. We'll go by our topics, ठीक है, our lecture plan, and we will cover the chart reading techniques, ठीक है. Chart reading techniques and air traffic circuit. Today we'll cover these two topics. Now, before going to the charts and other reading technique of chart, I'll just quickly cover the air traffic circuit. Okay. And before also of that, air traffic circuit se pehle, now I'll have a just quick recap of yesterday's lecture. For that, someone is going to tell me the echolocation designator of some airports. Okay. Who is going to tell me the location designator of Udaipur? उदयपुर का echolocation designator कोड क्या होगा? Any of you? Victor Alpha India Delta. Say again. Reading you two. Victor Alpha India Delta. India Delta. Uniform Delta. Uniform Delta. I saw correction. Uniform Delta. Okay. What about Bhopal? Victor Alpha Bravo Lima. I think I had repeated 3 times till the time. Victor Alpha Bravo Papa. ये थोड़ा सा exception है. You need to carry. Victor Alpha Bravo Papa. ठीक है? Got it? ठीक है. Khajuraho all okay. Jodhpur, Jaipur. Tell me about Jaipur. Victor India Juliet Papa. Very good. And Lucknow. What about Lucknow? What about Lucknow? Victor India Lima Kilo. Kilo. Okay, Victor India Lima Kilo. ठीक है. So is this topic clear to you? How to write the echolocation designator? Is this clear? थोड़ा सा क्लियर है मैं, लेकिन वो वीडियो से कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम आगे स्टार्ट कर. ठीक है. Done. So we'll go to the next. और चार्ट नंबर 3 में इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं. Okay. Tell me about Srinagar. Tell me about Srinagar if you can. Victor Tango Lima Kilo Kilo. Amol, what about Srinagar? Try answering it. Victor India Sierra Golf. Sierra Golf. Victor India Sierra Golf. ये स्क्रीन मोबाइल पे छोटा होके दिखता है क्या, या फिर ऑन योर लैपटॉप? हाँ छोटा होके स्क्रीन पे, मोबाइल पे. अच्छा मोबाइल पे देन छोटा दिखता होगा. ओके, आई कैन सी. व्हाट अबाउट पठानकोट? हाँ, व्हाट अबाउट पठानकोट? पठानकोट Victor India Papa Kilo. Very good. Victor India Papa Kilo. And then about Amritsar.
Victor India Alpha Romeo. Victor India Alpha Romeo. Okay. Now, this two chart has already been shared with you. Okay, these two charts has already been shared with you. एक है hypothetical root chart version 2. ठीक है? This one is already with you through Drive link, and if you say, I'll share through WhatsApp also. This one is hypothetical root chart version 2, and this one was version 1 जहां पे लिखा हुआ था root chart 1. अभी क्या है कि there is some discontinuity in the WPC itself. When I had given exam in I think 2.5 years ago, ये वाला चार्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट था, this had been used in Hyderabad session, and then some of my students and I also had observed कि फिर से वापस पुराने चार्ट पे वो लोग आ गए थे. बट पिछले 2 अटेम्प्ट से people are saying कि again they had came back to this new chart. दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है I'll tell. ठीक है, दो चार्ट जो है, एक जो हाइपोथेटिकल रूट चार्ट है वर्जन 2, ठीक है, this one is little clear and having good image. Okay, can you confirm who is Victor Tango India Papa Charlie? माधव. अच्छा, okay. So this chart is little clear, जो वर्जन 2 है, ठीक है. इसका इमेज क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, ठीक है, HD है पूरा सबसे पहले तो. एंड इन दिस चार्ट अल्टीट्यूड डाटा जो रहता है ना, कि अल्टीट्यूड का रेंज क्या रहेगा, या फिर किसी भी एयरपोर्ट के नाम, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले किया गया है, रादर देन जो पुराने चार्ट है इसका इमेज थोड़ा डल रहता है. नॉट इवन विथ मी, जो एग्जाम हॉल में भी आता है ना, उसका भी थोड़ा सा ऐसा ही ग्राफिक्स है, वो भी थोड़ा सा डल ही रहेगा. प्लस ये थोड़ा ज्यादा आपको भरा भरा हुआ लगेगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा. द न्यू चार्ट विल बी, यू कैन फील इट as clear and with less density. ये थोड़ा सा dense कम है, ठीक है. This will be little clear. Now, the major difference between these two charts is जो पुराने वाले चार्ट थे वहां पे दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस का डेटा लिखा हुआ रहता था. As you can see, I had zoomed it also. If there is a place, something is known as Dubox and something is known as Nagpur. नागपुर से ड्यूबॉक्स कितना दूर है, दैट इज बीइंग रिटन इन रेड कलर, 134 नॉटिकल माइल, जो कि नए वाले चार्ट पे मिसिंग है. सो नए वाले चार्ट पे आपको डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा. डिस्टेंस यू आर गोइंग टू यूज हाइपोथेटिकली, खुद से एज्यूम करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो. फर्स्ट मेजर चेंज. सेकेंड वन इज, एज यू कैन सी द अल्टीट्यूड डेटा, यहां पे देखो इस टाइप से लिखा हुआ है ना, F50 means 5000 feet. So this one is known as the upper limit is 5000 feet. This one is known as the lower limit is 5000 feet. But in the new chart, it is clearly written in the format of fractions. ठीक है, 50 upon CTR means ground level to 5000 feet. Nagpur TMA upon flight level 50 means from 5000 feet to maximum limit of Nagpur, like that. तो हम लोग इसको धीरे धीरे करके कैरी करेंगे. दो मेजर डिफरेंस है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, दैट इज नॉट मच टफ. ठीक है, कोई टफ नहीं है ये, और बिल्कुल इजी है टू अंडरस्टैंड. सो विल सी वन बाय वन. ठीक है, सबसे पहले इसी चार्ट से शुरू करते हैं. हम लोग दोनों चार्ट्स को पढ़ लेंगे, एंड इन प्रैक्टिस वी विल यूज द लेटेस्ट वन, क्योंकि पिछले 1.5 ईयर से कंटिन्यूअसली ये वाला चार्ट यूज हो रहा है, लेटेस्ट वाला. सो विल कंसीडरिंग प्रैक्टिस ऑन बोथ ऑफ द चार्ट. ठीक है, 60-40 का रेशियो रखेंगे. द लेटेस्ट चार्ट विल यूज 60% एंड ओल्ड वाला 40% यूज कर लेता है. आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. मैंने जब स्टार्टिंग में अपना सेशन ओपन किया था
तो मैंने इसी चार्ट से सबको पढ़ाया, ठीक है। स्टिल स्टूडेंट्स वेर एबल टू पास, ठीक है। एंड देन आई केम टू नो कि ये वाला चार्ट नहीं आता है। देन आई हैड टर्न्ड टू दिस वन, मैंने ओल्ड वाला चार्ट फिर से पढ़ाया। अगेन आई केम टू नो कि ये वाला चार्ट आ रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट WPC पीपल आर डूइंग, सो आई वोंट टेक एनी रिस्क। मैं दोनों पढ़ाऊंगा। इज दैट ओके? कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली डिस्टेंस वाला, नथिंग एल्स देन दैट। बाकी दोनों चीज इजी है। नाउ when you look at the chart, this one is written clearly as hypothetical ATS route chart, means hypothetically air traffic services route chart, ठीक है। This chart is for exam purpose only, this is not is a real chart, ठीक है। means अगर इस चार्ट में लिखा हुआ है कि उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में जो रूट है, उस रूट को विस्की 13 बोला जाता है, इट डजंट मीन कि रियल का जो रूट है उसको विस्की 13 बोला जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, कुछ भी प्रैक्टिस के लिए नाम दे दिया गया है। सो इट मे हैव सम रिजेम्बलेंस विद द रियलिटी, समटाइम्स इट वोंट बी रिजेम्बल्ड विद द रियलिटी। सपोज दिल्ली के बगल में दिया है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद इज अ प्लेस इन हैदराबाद। सो हाउ सिकंदराबाद can lie near to Delhi? So while reading this chart, don't think this is the real chart and why this city is in other state, why that city is in another state. You should understand कि this is hypothetically mapped. हो सकता है कि कई बार resemble कर जाए, कई बार नहीं करे. So both the case we need to take it lightly. Now, in this chart, the green color line, ठीक है, the green color line is indicating FIR boundary, flight information region boundary, ठीक है। How many FIR there? Who is going to tell me? Madhav, can you confirm how many FIR there in India? 4 4 or 5? actually 4 Go ahead, go ahead. 4 Okay. I had suggested that you should consider both in the examination. Neither say 4 nor say 5. Try to say both. In India, we have 4 FIR: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. FIR means Flight Information Region. Northern FIR has been indicated with the letter I. Southern FIR indicated with the letter O. Western FIR, that is Mumbai, indicated with the letter E. And then Kolkata and Guwahati. Okay? Kolkata and Guwahati both comes under letter code E, echo. Okay? So this green color line in both of the chart, this green color line is FIR boundary, and which FIR they are going to decide, you can see by writing the name, by finding their name. You can see here, this green color line divides Delhi and Mumbai FIR here clearly, right? In the other map, you can see this green color line dividing Delhi and Kolkata FIR here, okay? Delhi and Mumbai FIR here, and Mumbai and Kolkata FIR here. So this indicates boundary कि यहाँ से यहाँ के बाद मुंबई का एरिया, इधर वाला कोलकाता का एरिया, ये वाला दिल्ली का एरिया, right? So this indicates the FIR boundaries. In other chart also there is very little change कि green color के ऊपर black dashed line रहेगा, that's all. ठीक है, nothing different from that. Green color के ऊपर black dashed line रहेगा. This black dashed line were indicating FIR boundaries in old charts, पुराने वाले charts में, but green color का line रहेगा. The same Delhi Mumbai FIR, as you can see in this chart also. This one is Mumbai Kolkata FIR, Mumbai Delhi FIR, and Delhi Kolkata FIR. Clear?
सो व्हेन यू आर फाइंडिंग एनी एयरपोर्ट, आपको एफआईआर बाउंड्री से क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा एयरपोर्ट कौन सा एफआईआर में सिचुएटेड है. Am I clear so far? Now, so green color indicates FIR boundaries. Always. ठीक है? In every map, green color indicates FIR boundaries, as you can see. Now, next one. In the bottom of every chart, ठीक है? In the bottom of every chart, you will find some legends. Legends मतलब क्या? कि अगर इस चार्ट में किसी भी तरह का सिंबल यूज किया गया है, ठीक है, किसी भी तरह का एक आप कह लो कि either any notation, either any symbol, either any article यूज किया गया है, either किसी टाइप का ड्राइंग अगर इस चार्ट को बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, तो वो वाला सिंबल, वो वाला डायग्राम किस मीनिंग को सेटिस्फाई करता है, वो हमको मिलता है एज अ लेजेंड. ठीक है, कि अगर हम कहीं पे चार्ट में एक पेंटागन शेप यूज किए हैं, दिस पेंटागन शेप मींस कि दिस एयरपोर्ट इज हैविंग वीओआर स्टेशन. ठीक है, तो लेजेंड्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे. नाउ ग्रीन कलर आई हैज ऑलरेडी टोल्ड कि दैट इज इंडिकेटिंग एफआईआर बाउंड्री. ठीक है, ग्रीन कलर का लाइन एफआईआर बाउंड्री. देन पेंटागन शेप देख सकते हो आप, नागपुर के ऊपर, औरंगाबाद के ऊपर, मुंबई के ऊपर पेंटागन शेप. इफ देयर इज अ पेंटागन शेप, इट इंडिकेट्स दिस एयरपोर्ट इज हैविंग वीओआर स्टेशन. ठीक है, ये स्टेशन वीओआर इक्विप्ड है. नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, करेक्शन, ट्रायंगल एंड सर्कल. ठीक है, यू कैन सी एज अ सोनगढ़ मैं मार्क कर रहा हूं. दिस वन इज सर्कल, दिस वन इज ट्रायंगल. ठीक है, बोथ. अब ट्रायंगल और सर्कल के बारे में पुराने चार्ट पे अच्छे से दिया हुआ था, जस्ट हैव अ लुक. आई हैड जस्ट रिटर्न टू पुराना चार्ट. एफआईआर सेम. ठीक है, वीओआर सेम. अबाउट दिस ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है, नाउ आई विल डिस्क्राइब इट वन बाय वन. सपोज अपना एयरक्राफ्ट औरंगाबाद से नागपुर जा रहा है. सो रास्ते में हमें जितने सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे, दैट इज डार्क कलर्ड ट्रायंगल, ब्लैक कलर का, ठीक है, और जितने सारे सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है, आइदर सर्कल किया हुआ मिले या ट्रायंगल किया हुआ मिले, ऑल टुगेदर बोथ ऑफ दिस सिंबल्स आर नोन एज अपना वे पॉइंट. ठीक है, दोनों मिलके बनते हैं वे पॉइंट. वे पॉइंट वेरी इजी, रास्ते में पड़ने वाले सारे पॉइंट्स को वे पॉइंट्स कहा जाता है. एंड in the RT we are saying it MRP. ठीक है, MRP, mandatory reporting points. ठीक है, note down their full form, mandatory reporting points. कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप रिपोर्ट करोगे, या फिर जब भी आप रिपोर्ट करोगे अपना पोजीशन, आपको इन सारे वे पॉइंट्स को कंसीडर करना है, मिस नहीं करना है, इसको भी वैल्यू देना है. ठीक है, सो सच पॉइंट्स आर नोन एज मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स. अगर किसी को कहीं समझने में प्रॉब्लम हो, देन एंड देयर यू कैन स्टॉप मी. ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील कि स्किप करते हुए चलें और लास्ट में बचा के रखें. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, स्टॉप में, देन एंड देयर वहीं पे रोक लो. ठीक है, सो दिस ट्रायंगल एंड सर्कल separately, the circle is known as NDB, that is non-directional beacon, and these triangles are known as DR, dead reckoning. Dead reckoning means when you are calculating the distance and time, when you are calculating your position based on the distance and time formula, then you are taking a reference with anyone. Okay? So कुल मिला के ये वाला चाहे ट्रायंगल हो या सर्कल हो या फिर रास्ते में पड़ने वाला कोई भी प्लेस हो, हमारे फ्लाइट प्लान के लिए हर एक प्लेस वे पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, सो सपोज अगर हम मुंबई से नागपुर का फ्लाइट ले रहे हैं, तो हमारे लिए ड्यूबॉक्स इज ऑल्सो अ वे पॉइंट,
Aurangabad is also a waypoint. Opaka, this is also a waypoint to us. So रास्ते में पड़ने वाले सारे पॉइंट waypoint. Am I clear so far? Yes. ब्लैक कलर लाइन, ठीक है, ब्लैक कलर का जितने भी लाइंस आप देख रहे हो ना, दिस लाइंस आर नोन एज रूट्स। जैसे हम लोग ट्रैफिक में रोड का कोई ना कोई नंबर देते हैं, राइट, NH24, NH48, NH37, NH38, लाइक दैट। सिमिलरली रूट एक हाइपोथेटिकल रूट है जो कि हवा में तो ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बट ऑन द पेपर वी आर कंसिडरिंग इट एज अ रूट। कि अगर हम अहमदाबाद से नागपुर कोई फ्लाइट लेंगे तो हम ये वाला रूट फॉलो करेंगे और इस रूट का नाम होगा गोल्फ 472। ठीक है, जैसा रूट जैसे सिंपल रोड का कोई ना कोई नाम रहता है, NH48, NH37, NH42। सिमिलरली इस वाले रूट का भी कुछ नाम रहता है। क्या नाम है? गोल्फ 472। मुंबई से नागपुर जो रूट जाएगा उस रूट का नाम है गोल्फ 450। देखो नजर मारो, गोल्फ 450। क्लियर? नाउ इन द रूट इटसेल्फ, रूट का जो फॉर्मेट रहता है दैट इज फर्स्ट लेटर विल बी अल्फाबेट्स। ठीक है, पहला डिजिट रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड देन यू विल हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। विस्की 345, गोल्फ 450, अल्फा 474, हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको। बट कहीं कहीं देखोगे कि लेटर कोड पहले भी रहता है और लेटर कोड लास्ट में भी रहता है। हाउ? यहां पे देखो सब लोग, विस्की 13 नॉर्थ, विस्की 13 साउथ। अगर आप लोगों ने चार्ट प्रिंट आउट लिया है देन कीप चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि मैं तो स्क्रीन जूम आउट जूम इन करता रहूंगा बिकॉज आई नीड टू मार्क सम एनोटेशंस। लेकिन आपको अपने चार्ट को सामने रखिए या अपने पास रखिए सो दैट यू कैन फाइंड रिजेम्बलेंस। नहीं तो स्क्रीन छोटा बड़ा होता रहेगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई यस्टरडे आई हैव टोल्ड कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस चार्ट। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। सो दिस रूट इज रिटन एज विस्की 13 नवंबर, विस्की 13 सिएरा। अब इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, एक तो फिर भी चलो, दो अलग अलग रूट का दो अलग अलग नाम हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि रूट का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक ही रोड को 5 नाम से बुलाएंगे। सी हियर, दिस सिंगल रूट is called as whiskey 13 November, whiskey 13 November, oh sorry, whiskey 10 November, whiskey 13 November, alpha 374, whiskey 12 November। तो बोले क्या? कंफ्यूज कर दिया ये तो, राइट? यू कैन सिंपली आस्क कि सर इतने सारे रूट्स हैं, किस नाम से बोले, कौन सा सही रहेगा, विच वन विल बी द करेक्ट। ठीक है, सो इफ सच कंफ्यूजन्स आर देयर विद यू, ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है? एक लंबा सांस लेना है, ठीक है, और कुछ बेसिक थियरी याद करनी होगी। हाउ? देखो, अगर किसी रूट के लास्ट में लिखा हुआ है विस्की 20N, इट रिप्रेजेंट्स विस्की 20 नॉर्थ। ठीक है, ध्यान से। और कहीं पे लिखा हुआ है विस्की 20S, मीन्स विस्की 20 साउथ। आपको E और W, ईस्ट और वेस्ट, ये भी मिल सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो अब देखो, सपोज आपके एयरक्राफ्ट को भोपाल से दिल्ली जाना है। सो इफ यू गो फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली देन यू आर हैविंग अ फ्लाइट जो कि नदर्न फ्लाइट है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने वाला फ्लाइट है। एंड इफ यू आर हैविंग एन अपकमिंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, सो ये सदर्न जाने वाला फ्लाइट है। तो नॉर्थ और साउथ का मतलब होता है कि जब आप रूट प्लान करते हो, जब आप फ्लाइट प्लान फिल करते हो, तो अगर आपका फ्लाइट नॉर्थ के डायरेक्शन में है तो वही रूट चूज करो जिसमें नॉर्थ लिखा हुआ रहता है, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है देन यू हैव नो चॉइस।
मुंबई से नागपुर जाने के लिए सिर्फ एक ही रूट है तो एक ही रूट फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं पे दो रूट है, ठीक है, तो अगर आपको टुवर्ड्स नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ वाला रूट चूज करोगे, अगर टुवर्ड्स साउथ आना है देन साउथ वाला रूट चूज करोगे। अंडरस्टूड? अगर सेम रूट पे दोनों लिख दिया, नॉर्थ भी लिख दिया साउथ भी लिख दिया, इफ यू आर हैविंग अ फ्लाइट सपोज इंदौर टू भोपाल तो विस्की 10 नॉर्थ, भोपाल टू इंदौर विस्की 10 साउथ। एम आई क्लियर है? ये दोनों समझ में आया? क्लियर सर। नाउ उदयपुर टू दिल्ली जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाइट रहेगा, विस्की 13 नॉर्थ, दिल्ली से उदयपुर आना है, विस्की 13 साउथ। ठीक है, अब ये सब प्लान करते टाइम ही आपको प्लान कर लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और कंजेशन रहेगा। कैसे? दिल्ली से लखनऊ जाना है, वी आर हैविंग टू रूट्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक एरो मार्क बना हुआ है कि इफ वी आर गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली तो इस वाले डायरेक्शन के लिए जो रूट रहेगा दैट इज रोमियो 460, and if we are going to Delhi from Lucknow then this route will be Romeo 594. So while planning we need to choose like this only, we'll prefer this one. Okay, getting it? Yes, anyone? Yes, no, anything? Are you getting this point? क्लियर सर। ठीक है, वो तो हो गई सिंपल सिंपल। अभी आप बोलोगे सर सिंपल वाले तो आपने बता दिए, वो बताओ ना जो सबसे बड़ा सरदर्द है। ये रहा सरदर्द अपना कि एक ही रूट के इतने सारे नाम दे दिए, कौन सा फॉलो करूं? ठीक है ना, अगर आप इसी रूट को थोड़ा लार्ज एक्सटेंट तक देखो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दूर तक देखो तो पता चलेगा ये सारे रूट स्प्लिट होते हैं। विस्की 13 नॉर्थ यहां चला गया, ठीक है, देन अल्फा 43 सॉरी विस्की 12 नॉर्थ यहां चला गया, देन उसके बाद आया आपका विस्की 10 नॉर्थ, ये यहां चला गया, ठीक है, फिर आपको दिखा अल्फा 347, अल्फा 347 सेम रूट, ठीक है, सेम रूट अल्फा 347 वडोदरा के बाद कहलाता है अल्फा 347। ठीक है, तो जब आप एक लार्जर एक्सटेंट में देखोगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब अगर कोई एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से मुंबई आ रहा है तो वो सिर्फ लिख सकता है अल्फा 13 नॉर्थ। ठीक है, वैसे प्लानिंग के टाइम पे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपको नॉर्थ डायरेक्शन वाला फ्लाइट रखना है। सॉरी, विल टेक इट अपोजिट। अगर अहमदाबाद से मुंबई आ रहा है तो सदर्न वाला रूट फॉलो करेगा, विस्की 13 साउथ। अगर किसी एयरक्राफ्ट को मुंबई से अहमदाबाद जाना है देन वो रूट लिखेगा विस्की 13 नॉर्थ। क्यों? क्योंकि सेम रूट यहां तक विस्की 13 नॉर्थ कहलाता है एंड देन यहां से यहां भी ये विस्की 13 नॉर्थ ही है। गेटिंग इट? यस सर। अगर किसी एयरक्राफ्ट को जाना है मुंबई टू वडोदरा देन सेम रूट कहलाएगा विस्की 12 नॉर्थ। अगर किसी एयरक्राफ्ट को जाना है मुंबई टू इंदौर देन द सेम रूट विल बी कॉल्ड एज विस्की 10 नॉर्थ। अगर किसी एयरक्राफ्ट को जाना है मुंबई टू दिल्ली द सेम रूट विल बी कॉल्ड एज अल्फा 347। ठीक है ना, ये तो हो गया रूट को समझने का पॉइंट। अब हमको कभी भी फ्लाइट प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस रूट को फॉलो करना है, कहां से कहां तक जाना है, ये सब मिल जाएगा एग्जाम के फ्लाइट प्लान में। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, रूट हमको सिर्फ समझना पड़ता है, बनाने की जरूरत नहीं है, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। डन। सपोज एक यहाँ पे रूट क्या है, दिल्ली विस्की 13 साउथ, जयपुर, then survey area and then Romeo 218 and then whiskey 13 north. Now I'll let you know कि how to identify the route. चार्ट पे हमको सिर्फ रूट समझने की जरूरत पड़ती है, nothing else other than that. ठीक है,
So how we can carry? Just have a look. ये रहा अपने पास चार्ट. ठीक है. क्या क्या लिखा हुआ है? ध्यान से नोटेशन करता हूं मैं. नाउ क्या लिखा हुआ है? दिल्ली टू विस्की 13 साउथ. सो हियर इट इज दिल्ली विस्की 13 साउथ. दिखा? विस्की 13 साउथ. फिर क्या है? जयपुर, यानी जयपुर तक विस्की 13 साउथ. डन. एंड देन जयपुर के बाद क्या है? सर्वे एरिया. सो एज पर द प्लान दिस वन वाज द सर्वे एरिया. फिर क्या है रिटर्न में? जयपुर से रोमियो 218. सी रोमियो 218 कहां लिखा हुआ है? अगेन जब ये बैक होगा देन रोमियो 218. ठीक है, दिस इज रोमियो 218. एंड देन विस्की 13 नॉर्थ. तो विस्की 13 नॉर्थ. दिस विल अगेन गो बैक टू दिल्ली. तो हमें कभी भी फ्लाइट प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कौन सा रूट दिया हुआ है. ठीक है, किस किस को फॉलो करके आगे जाना है. सो विल नॉट बी कंफ्यूज लेटर ऑन. ठीक है, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी इजी. Nothing to take much load. Same thing here also. You can find whiskey 10 north, whiskey 20 south. ठीक है, and multiple routes on a single line. So we need to split accordingly कि किसको क्या कहां से कहां बोलेंगे. क्लियर? रूट चार्ट क्लियर हो गया सबको? रूट वाला इंफॉर्मेशन Clear. done. Now after the route, the important thing is any airport. ठीक है, कैसे? जस्ट हैव अ लुक. अच्छे से देखना, यहाँ पे एक डेफिनेशन होता है that may be asked in question number 5 sometimes, and then part 2 viva. Now एक एयरपोर्ट पे कितने सारे एटीसी के ऑफिस अवेलेबल हैं? ये लिखे रहते हैं ग्रीन कलर में, नियर टू द नेम ओनली. ठीक है, SMC, what does it mean? SMC का मतलब क्या होता है? Who is going to tell me? And read the frequency also. Surface movement area. SM, Surface movement control. हाँ, surface movement control. So if something is written as Nagpur SMC, इसको क्या, कौन सा इनके इसका, how we are going to read it? Nagpur control. Nagpur ground. नागपुर ग्राउंड. वेरी गुड. एंड देन नागपुर ग्राउंड के बाद दूसरा कौन सा है? Nagpur tower. एंड देन आफ्टर नागपुर टावर हु इज देयर? Nagpur approach. अप्रोच. एंड देन आफ्टर दैट Nagpur control. नागपुर कंट्रोल. वेरी गुड. नाउ जस्ट लुक एट द एयरपोर्ट नागपुर. ठीक है, जो इनर सर्कल है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इनर सर्कल लिखा हुआ है ना. 2 circles over any airport. Similarly in old chart also 2 सर्कल रहते थे. ठीक है, 2 सर्कल किसी भी चार्ट पे. नाउ जो इनर सर्कल है, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत इजी है. ठीक है, जो इनर सर्कल है इसको बोलते हैं CTR. क्या बोलते हैं? CTR. CTR मीन्स कंट्रोल जोन. ध्यान से. ठीक है, एंड जो आउटर सर्कल है दैट इज CTA, कंट्रोल एरिया. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? कंट्रोल जोन एंड कंट्रोल एरिया. आई एम हाईलाइटिंग दिस वन. CTR मीन्स कंट्रोल जोन, CTA मीन्स कंट्रोल एरिया. अब जो इनर सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स CTR. CTR का मालिक कौन? टावर. अगर आप कंट्रोल जोन में फ्लाई कर रहे हो देन आप टावर को कॉल करोगे. अगर आप कंट्रोल एरिया में फ्लाई कर रहे हो आप वहां के अप्रोच को कॉल करोगे. ये तो हो गया बेसिक. नाउ इसके अलावा और भी
दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जो कंट्रोल जोन है, ठीक है, इसमें आप टावर को करोगे कब तक, देयर इज ए लिमिट, ठीक है, देयर इज ए लिमिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ अल्टीट्यूड। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। कंट्रोल जोन का रेडियल लिमिट क्या है? 25 नॉटिकल माइल, 25 नॉटिकल माइल। इज दिस विजिबल टू यू? कंट्रोल जोन का लिमिट 25 नॉटिकल माइल एंड distance wise 25 nautical mile and altitude wise 5000 feet. How we are saying 5000 feet? Just have a look. ATS रूट चार्ट में अल्टीट्यूड डेटा हमेशा कोसेंट के फॉर्म में लिखा रहेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा रहेगा, a by b, a upon b के फॉर्मेट में, where a indicates the upper limit of an airspace and b indicates the lower limit of an airspace. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। अच्छा सा एग्जांपल उठाता हूं, इधर देखो, नागपुर TMA, the lower limit of this airspace means 20,000 feet and upper limit is 25,500 feet. The lower limit of Bangalore TMA is 26,000 feet, upper limit is 46,000 feet. Is that clear? A by B के फॉर्मेट में समझ में आया? Clear? Take one more example. 50 upon CTR. It means upper limit is 5,000 feet from ground level. ठीक है? Delhi TMA, FL150 and upper Delhi TMA. It means the lower limit of this airspace is 15,000 feet. Upper limit is infinity. ठीक है, जहां तक आपका सिविल एविएशन ऑपरेट हो सकता है उस अल्टीट्यूड तक आप दिल्ली TMA यानी दिल्ली कंट्रोल को कॉल करोगे, लेकिन कहां से? 15,000 फीट के ऊपर। सो इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन, it indicating the limit. How? Just have a look. 150 upon 50 means upper limit is 15,000 feet, lower limit is 5,000 feet. This is a flight level. ठीक है? These are the flight level indication. We'll back to the old chart. देखो old chart में भी इनर वाला हमेशा कंट्रोल जोन, आउटर वाला कंट्रोल एरिया। नाउ कंट्रोल जोन का मालिक टावर एंड कंट्रोल एरिया का मालिक अप्रोच, लेकिन टिल सर्टेन लिमिट ओनली। क्या है सर्टेन लिमिट? कि आप टावर को कॉल तो करोगे जब आप कंट्रोल जोन के अंदर फ्लाई करोगे, लेकिन डिस्टेंस और अल्टीट्यूड इन दोनों को मैच करवाते हुए। ठीक है, रेडियली 25 नॉटिकल माइल मींस आप नागपुर टावर को कब कॉल करोगे? अगर आप रेडियली 25 नॉटिकल माइल के अंदर और अल्टीट्यूड वाइज 5,000 फीट के बिलो फ्लाई करते तो। ठीक है, पुराने वाले चार्ट में भी इफ यू वांट यू कैन डिवाइड इट अपॉन A by B के फॉर्मेट में, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। कैसे? दो अल्टीट्यूड डेटा लिखा हुआ है 5050, F50 लिखे या FL50 लिखे, बोथ मींस फ्लाइट लेवल ओनली। ठीक है, अगर लिखा हुआ है F50 एंड ऊपर में बार लगा दिया मींस अपर लिमिट लगा दिया, कैप लगा दिया इसके ऊपर, दिस कैप रिप्रेजेंट्स कि नागपुर टावर इज अवेलेबल बिलो दिस कैप। ठीक है, 5,000 फीट तक। ठीक है, अगर अल्टीट्यूड के ऊपर कैप लगा दिया इट इंडिकेट्स मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम 5। छत के ऊपर कुछ नहीं होता है घर में, राइट? सिमिलरली FL50 ऊपर लगा दिया बार मींस मैक्सिमम 5,000 फीट। एंड देन यहां पे जैसे लिखा हुआ है F50 मींस फ्लाइट लेवल 5,000 एंड नीचे लगाया हुआ है बार मींस यहां से स्टार्ट करो 5,000 फीट से लेके जहां तक आप अपना एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हो वहां तक के पूरे एयर स्पेस के लिए आप कांटेक्ट करोगे नागपुर अप्रोच। नाउ we'll again understand one by one.
कंट्रोल जोन, ठीक है, इनर सर्कल कंट्रोल जोन दैट इज CTR, आउटर सर्कल कंट्रोल एरिया दैट इज CTA। यहां से देखो, कंट्रोल जोन कंट्रोल एरिया। डन। कंट्रोल जोन में आप किसको कॉल करोगे? टावर को। लेकिन ध्यान में क्या रखना है? दो चीज। कौन कौन सा चीज? अल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस तक 25 नॉटिकल माइल के अंदर, अल्टीट्यूड कहां तक? 5000 फीट के नीचे। ठीक है, ये रहा पुराना मैप। नाउ न्यू मैप, सेम थिंग, इनर वाला कंट्रोल जोन, आउटर वाला कंट्रोल एरिया। नागपुर टावर को कहां पे कॉल करोगे? 25 नॉटिकल माइल के अंदर और 5000 फीट के नीचे। देन दूसरा क्या आया? नागपुर अप्रोच। ठीक है, नागपुर अप्रोच, नागपुर अप्रोच को कहां पे कॉल करोगे? 50 नॉटिकल माइल के अंदर प्लस 5000 फीट के अबव, 5000 फीट से ऊपर रहोगे और 50 नॉटिकल माइल के अंदर रहोगे, देन यू नीड टू कॉल नागपुर अप्रोच। Am I clear so far? Victor Tango in India Zulu November. Please confirm when you have joined. कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया है? So that I can repeat anything. अल्टीट्यूड वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा ठीक है, you can see from video also. ठीक है, that is not a big deal. Now everyone please confirm, are you able to find when to call tower, when to call approach, and how to divide these fraction into altitude data? And this one also, right? Now एक और चीज, आप अगर कंट्रोल जोन की रेडियस में फ्लाई कर रहे हो लेकिन 5000 के ऊपर फ्लाई कर रहे हो, 7000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, तो किसको कॉल करोगे? टावर को या अप्रोच को? वेरी इंटरेस्टिंग। वी नीड टू कॉल अप्रोच। व्हाई? बिकॉज 5000 तक ही अपना टावर है एंड रेडियस है 25 नॉटिकल माइल। अगर हम टावर की रेंज में भी 5000 फीट के ऊपर चले गए, then we need to switch to approach. We need to always consider both of the data, altitude as well as distance. किसी भी एक डेटा से void होता है, खेला खत्म, तुरंत ATC change। ठीक है, now look at here, look at here, ये है औरंगाबाद का कंट्रोल जोन। Now who can tell me we can call Aurangabad tower up to what altitude and up to what distance? Try answering it, guys. Be participative so that I can understand below everything. 5025 below 5025 nautical mile. Very good. If we are flying here, मैं थोड़ा सा अभी symbol use करूंगा. If we are flying ज्यादा मोटा हो गया, here at 7000 feet, whom we are going to call? Approach. कौन सा approach? Till the with the city name. औरंगाबाद अप्रोच। वेरी गुड, औरंगाबाद अप्रोच। नाउ ये तो हो गया CTR। अब देखो इसका जो दूसरा सर्कल है ना, ये थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, हम आएंगे उसके बाद में। नाउ इसी इसके कंट्रोल एरिया में CTA में आप देखो दो डेटा दिया हुआ है। क्या? आप कॉल करोगे मुंबई TMA को इफ यू आर फ्लाइंग कहां से कहां तक? हु इज गोइंग टू टेल मी? फ्लाइट लेवल हाँ 20,000 से 46,000 हाँ तक। 46,000 फीट तक आप कहां कॉल करोगे? मुंबई TMA को। उसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद TMA को कहां से कहां तक कॉल करोगे? फ्लाइट लेवल 5,000 से 15,000 तक। 15,000 फीट। ओके, ये हो गया आपके कैलकुलेशन का डेटा। नाउ अगेन विल वर्क ऑन मुंबई।
Who is going to tell me the range for Mumbai Tower? एक और एक्सरसाइज करते हैं, then we'll move ahead. मुंबई टावर का वर्किंग रेंज क्या रहेगा इन अल्टीट्यूड एंड इन डिस्टेंस वाइज? 40 nautical mile हाँ, और anyone can answer. I don't have any problem. Yes. Below 7,000. Below 7,000 feet and 40 nautical mile. Don't say 40 because in reading techniques we have seen that we cannot read the number. We should say digits individually. Okay. So Mumbai Tower we will call if we are flying below 7,000 feet and within 40 nautical mile area. What about Mumbai approach? Mumbai approach Mumbai It should- approach, flight, Mhm. flight level 7,000 and 100 nautical mile. 100 हाँ. nautical nautical mile. mile. Flight level 7,000 is the lower limit of Mumbai approach or upper limit? Lower limit. Lower limit. Very good. Means 7,000 and above we can call at any altitude. Now we'll jump to our new data. ठीक है? New data. Okay. अभी हमने क्या पढ़ा कि when you are under CTR, ठीक है, तो आप कॉल करोगे टावर को, when you are under CTA आप कॉल करोगे अप्रोच को. ये दोनों चीजें तो आपने पढ़ ली. उसके अलावा जब आप टावर और अप्रोच दोनों का एरिया क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, ना तो आप टावर के अंदर रह पाते हो ना ही आप अप्रोच के अंदर रह पाते हो, तो कहाँ के रह जाते हो? ठीक है, ठीक है, जस्ट अ लेम जोक, बट जो कहीं का नहीं रहता वो कहाँ का रह जाता है? ठीक है, अकॉर्डिंगली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ना तो टावर के कंट्रोल एरिया में आ पाया ना ही अप्रोच के कंट्रोल एरिया में आ पाया, वो किसके कंट्रोल एरिया में रहेगा? सो वी नीड टू जंप वन बाय वन. टावर का जोन खत्म, एप्रोन का जोन खत्म, किसका आया? कंट्रोल का. सपोज यू आर फ्लाइंग एट 120 नॉटिकल माइल अवे, ये ग्रीन वाले पॉइंट पे जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, आप अप्रोच के रेंज से बाहर चले गए, देन whom you will call? Mumbai control. कंट्रोल. ठीक है, जब आप टावर जब आप अप्रोच दोनों के एरिया से बाहर चले गए तो कंट्रोल को कॉल करोगे. नाउ हर एक कंट्रोल का अपना एक कंट्रोल बाउंड्री होता है, ठीक है, दैट बाउंड्री इज बीइंग इंडिकेटेड इन थिक ब्लू कलर लाइन. ठीक है, अब देखो पुराने वाले चार्ट में भी सेम, हर एक कंट्रोल बाउंड्री कंट्रोल का अपना एक बाउंड्री होता है. मीन्स यू विल फाइंड समथिंग इज इनक्लोज्ड. देखो मुंबई का कंट्रोल बाउंड्री बना रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक आउट. यानी आप इस एरिया के अंदर में फ्लाई कर रहे हो, देन आप मुंबई कंट्रोल को कॉल कर पाओगे. अगर आप किसी के अप्रोच या टावर के रेंज में नहीं आते हो तब किसको कॉल लगाओगे? मुंबई कंट्रोल को. यानी अपने कंट्रोल बाउंड्री के, ठीक है, जहां भी आप कोई आपका लोकेशन रहेगा वहां पे देखो कि कंट्रोल बाउंड्री सबसे पहले कहां पे है. सपोज एक रैंडम क्वेश्चन आ गया कि आप यहां पे फ्लाई कर रहे हो, तो आपका कंट्रोल बाउंड्री कौन सा होगा? तुरंत अपने नियर बाय देखिए, जो थिक कलर ब्लू लाइन है उसको सबसे पहले एक बार नजर मारिए. ये वाला एरिया किसके अंदर में आएगा? मुंबई के अंदर में. ठीक है, देन वील सी नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री. नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री ये है नागपुर. ठीक है, इसका इनक्लोज्ड सरफेस ये रहा. यानी इस एरिया में अगर आप किसी के टावर या अप्रोच को कॉल नहीं कर पाते हो तो आप कॉल करोगे नागपुर कंट्रोल को. ठीक है, हर एक कंट्रोल बाउंड्री के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके पास कंट्रोल अवेलेबल रहेगा. जैसे जस्ट हैव अ लुक, अगर ये नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री है
तो इसके अंदर कितने एयरपोर्ट हैं जिसके पास कंट्रोल अवेलेबल है? ओनली वन, नागपुर। भोपाल के पास कंट्रोल नहीं है। सो हर एक एटीसी कंट्रोल अपना एक कंट्रोल बाउंड्री रखता है। अहमदाबाद के पास कंट्रोल ऑफिस है, जस्ट हैव अ लुक। अहमदाबाद के पास कंट्रोल ऑफिस है, तो ये रहा अहमदाबाद का कंट्रोल बाउंड्री। तो जितने भी कंट्रोल अवेलेबल है, एटीसी कंट्रोल ऑफिस अवेलेबल है, हर एक एटीसी कंट्रोल का अपना अपना एक कंट्रोल बाउंड्री रहता है। दिल्ली, दिल्ली, ये देखो है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे स्टार फिश बनाया, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू दिल्ली। बाकी इस एरिया में किसी के भी पास कंट्रोल बाउंड्री नहीं है। सिमिलरली विल जंप टू द ओल्ड चार्ट। यहाँ पे भी आपको थिक ब्लू कलर लाइन मिलेगा। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अहमदाबाद कंट्रोल, एंड देन ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नागपुर कंट्रोल। सॉरी, कहने का मतलब अगर आप किसी के अप्रोच या टावर के जोन से बाहर निकल जाते हो तो आप किसको कॉल करोगे? अपने नजदीकी कंट्रोल सेंटर से, एरिया कंट्रोल सेंटर से। एम आई क्लियर टिल नाउ? क्लियर सर। यस। अब आपको कई बार लिखा हुआ मिल सकता है नागपुर सीटीए, एनएनपी सीटीए, बेंगलोर टीएमए, एएई टीएमए, ठीक है, मुंबई सीटीए, मुंबई टीएमए, औरंगाबाद टीएमए, ठीक है। अब देखो, जो कंट्रोल बाउंड्री होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है टर्मिनल मूवमेंट एरिया, टीएमए। कंट्रोल बाउंड्री का दूसरा नाम होता है टीएमए। तब आप बोलोगे कि सर औरंगाबाद टीएमए क्यों दिया है? औरंगाबाद के पास तो कंट्रोल ऑफिस ही नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन इज लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। तो यही सारा तो मिस्टेक था पुराने चार्ट में। किसी को कुछ लिख के रखा था, काफी गलत सलत इंफॉर्मेशन थे। लेकिन आपको बेसिकली ये सोच के चलना है कि चाहे वहां पे टीएमए लिखा रहे, चाहे सीटीए लिखा रहे, ठीक है, कुछ भी लिखा रहे, आप बस ये सोच के चलना है कि अगर हम किसी के टावर या अप्रोच की रेंज से बाहर हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वहां के कंट्रोल को कॉल कर सकते हैं। एम आई क्लियर? चाहे उस पे सीटीए लिखा रहे या टीएमए लिखा रहे। ऐसा नहीं कि सीटीए के पढ़ के हम नागपुर अप्रोच को कॉल लगा दिए, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। हमने पढ़ाया कि सीटीए मतलब कंट्रोल एरिया, कंट्रोल एरिया का मालिक अप्रोच। तो अब यहाँ पे लिख गया नागपुर सीटीए, तो लगा दो नागपुर अप्रोच को कॉल, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। वेयर एवर यू आर फाइंडिंग एनीथिंग, इधर सीटीए लिखा हो या टीएमए लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, अगर आप किसी के टावर या अप्रोच के रेंज से बाहर हो तो आप वहां के मैक्सिमम अथॉरिटी को कॉल करोगे, जो सबसे ज्यादा सीनियर अथॉरिटी हो हायरार्की में। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई सीटीए, आप टावर से भी बाहर हो, अप्रोच से भी बाहर हो, तो किसको कॉल लगाओगे? मुंबई कंट्रोल को। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है औरंगाबाद टीएमए, औरंगाबाद में सबसे सीनियर कौन? अप्रोच, तो कॉल जाएगा औरंगाबाद अप्रोच को। क्लियर? पुराने चार्ट पे इसमें आपको सीटीए नहीं मिलेगा, सॉरी नए वाले चार्ट पे आपको सीटीए नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा टीएमए। सो टीएमए मींस टर्मिनल मूवमेंट एरिया, दैट रिप्रेजेंट्स कंट्रोल। कि अगर आप इसके टावर से बाहर हो गए, अप्रोच से बाहर हो गए, तो किसको कॉल लगाओगे? नागपुर के कंट्रोल एरिया को। क्लियर? Am I clear so far? Anyone? Now, क्लियर। दूसरी चीज, कोलकाता का कंट्रोल एरिया देखते हैं। देखो, हर एक कंट्रोल एरिया आपस में इनक्लोज्ड रहेगा, कंट्रोल बाउंड्री बोलते हैं इसको। ये जो थिक ब्लू कलर लाइन है, दैट इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री। हर एक कंट्रोल, सॉरी एटीसी कंट्रोल का अपना अपना कंट्रोल बाउंड्री होता है। ये बीच में देखो, अभी जो मैं स्टार फिश बना रहा हूं, दिस इज फॉर वाराणसी कंट्रोल बाउंड्री, अच्छे से देखना, ठीक है। ये बीच में जो थेनोस का हथौड़ा बना है,
ये बना है वाराणसी कंट्रोल के लिए। इस बीच में सिर्फ और सिर्फ वाराणसी के पास कंट्रोल ऑफिस है, बाकी दूसरे किसी के पास भी एरिया कंट्रोल सेंटर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा कॉल किसको जाएगा? वाराणसी कंट्रोल को। ठीक है, लाइक दैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंगली। अब कई बार क्या होगा कि जो कंट्रोल, अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। कोलकाता का कंट्रोल बाउंड्री ये रहा। तो अगर हम यहाँ फ्लाई कर रहे हैं, ना कोलकाता के टावर के रेंज में आए, ना कोलकाता के अप्रोच के रेंज में आए, किसको कॉल करेंगे? कोलकाता कंट्रोल को। कई बार क्या होगा कि आप एक रैंडम एरिया में फ्लाई करोगे। सपोज आप यहाँ पे फ्लाई कर रहे हो, ये जो रेड डॉट अभी मैंने बनाया है, ठीक है। अब आसपास आपने नजर दौड़ाया, आपको कोई सा भी एटीसी या कंट्रोल बाउंड्री नहीं दिखा। जमशेदपुर का यहीं खत्म हो जाता है, रांची का यहीं पे खत्म है, गया का इधर ही खत्म, कोलकाता का इधर ही खत्म। तो ये रेड डॉट वाला किसको कॉल करे? नागपुर कॉल करने जाए? इतना दूर है। तो whenever you are not finding any ATC, then try to call nearby ATC. अगर आप इस रेड डॉट के ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो आप कॉल करोगे कोलकाता कंट्रोल को। मैं क्लियर सो फार? ठीक है। नाउ अब जहां पे भी कंट्रोल बाउंड्री रहेगा या किसी का भी कंट्रोल एरिया रहेगा, वहां पे हमेशा एक रिटेन ऑर्डर में हिंट दिया हुआ रहेगा कि ये जो खाली एरिया है यहाँ पे किसको कॉल करोगे? टीएमए नागपुर मीन्स नागपुर कंट्रोल। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे जब फ्लाई करोगे तो कहाँ कॉल करोगे? पटना टीएमए मीन्स पटना अप्रोच। हमेशा कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। इधर देखो, ये वाला एरिया यहाँ पे दो दो दे दिया, अब क्या करोगे? ठीक है, इस वाले एरिया में दो दो दे दिया, अब क्या करोगे? लिमिट दिया है ना, 26,000 एंड अबव वाराणसी कंट्रोल, 20,000 टू 25,000 नागपुर कंट्रोल। ठीक है, सो कब कहां किसको कॉल करना है ये हमेशा आपको हिंट दिया रहेगा चार्ट के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है? अपना पोजीशन लोकेट करना है अच्छे से कि एज पर द क्वेश्चन हम चार्ट पे कहां फ्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज आप यहां फ्लाई कर रहे हो दिस ब्लैक डॉट पे, किसको कॉल करना है? नागपुर टीएमए। मैं क्लियर? गेटिंग इट? आप यहां फ्लाई कर रहे हो, किसको कॉल करना है? नागपुर टीएमए। अब मैं एक एरिया हाईलाइट कर रहा हूं। आई होप कि आपके पास कलर वाला चार्ट अवेलेबल है प्रिंटेड। ये वाला जो मैंने अभी एरिया इंक्लोज किया, इसमें अगर हम फ्लाई कर रहे हैं 7,000 फीट पे, किसे कॉल करेंगे? कौन से एटीसी को कॉल किया जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसपास के एटीसी देखना है, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप दिल्ली एफआईआर में फ्लाई कर रहे हो तो दिल्ली कंट्रोल को कॉल कर लो। मुंबई एफआईआर आ गए, नागपुर कंट्रोल को कॉल कर लो। ठीक है, तो अगर कहीं पे क्लियरली कंट्रोल एरिया डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, देन ऑलवेज यू विल फाइंड द नियर बाय कंट्रोल ऑफिसेस। यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, इधर किसको कॉल करेंगे? हु इज गोइंग टू टेल मी? दिस रेड डॉट। दिल्ली कंट्रोल, दिल्ली कंट्रोल। दिल्ली कंट्रोल। ठीक है, नियर बाय यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, किसको कॉल करेंगे? मुंबई। अहमदाबाद कंट्रोल, अहमदाबाद कंट्रोल। मुंबई से पहले अहमदाबाद है बीच में। सी, नियर बाय कंट्रोल ऑफिसर्स को। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर कॉलिंग द एटीसीज। ठीक है, एटीसी पे हम लोग ऐसे ही कॉल लगाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू आर 70 नॉटिकल माइल फ्रॉम औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद से आप 70 नॉटिकल माइल दूर हो। 70 नॉटिकल माइल थोड़ा कम बता दिया।
यू आर 120 नॉटिकल माइल आउटबाउंड औरंगाबाद, औरंगाबाद से 120 नॉटिकल माइल दूर हो, यही रहेगा क्वेश्चन। गिव द पोजीशन रिपोर्ट, तो कौन से एटीसी को कॉल लगेगा? नागपुर कंट्रोल। एम आई क्लियर सो फार? क्लियर सर। नाउ पुराने चार्ट में डिस्टेंस इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते थे, यानी दो पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ रहेगा नॉटिकल माइल में। नए वाले चार्ट पे ये चीज मिसिंग है, तो आप अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ। कैसे? बाय द कैलकुलेटिंग मेथड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप रेंडम सोच लो कि दिस इज 100 नॉटिकल माइल। सो सिमिलरली दिस वन कैन बिकम 80, राइट? थोड़ा सा ही तो छोटा है। एंड दिस वन कैन बिकम 20, अगेन दिस वन कैन बिकम 100 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो अगर नया वाला चार्ट आपके पास आता है तो डिस्टेंस वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइपोथेटिकली। इसमें किसी भी टाइप का क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत कम ज्यादा कैलकुलेट कर लिया तो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, सपोज आपने कैलकुलेट किया कि नागपुर से डेल्टा का डिस्टेंस है 70 नॉटिकल माइल, एंड इफ यू आर सेइंग कि डेल्टा टू भोपाल इज 30 नॉटिकल माइल, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंची टेप लेके नापने लगेगा। नो, whatever you are saying, if that looks realistic then that is acceptable। कैसे? अगर इतना डिस्टेंस 70 कहला रहा है, सो दिस इज ऑलमोस्ट हाफ, तो 70 का हाफ 35। 30 भी बोलोगे नॉट अ प्रॉब्लम, 40 भी बोलोगे नॉट अ प्रॉब्लम, प्लस माइनस 5 10 15 एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है वहां पे आपको डिस्टेंस अपने मन से हाइपोथेटिकली लिखना पड़ेगा। एंड दिस वाज द बेनिफिट इन ओल्डर चार्ट कि वहां पे डिस्टेंस लिखा हुआ रहता था। सी 108 नॉटिकल माइल यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 57 नॉटिकल माइल। क्लियर? बट अभी मैंने जो नए चार्ट में कैलकुलेट किया तो क्या अंदाजा लगाया कि यहां से यहां तक 70 होगा और यहां से यहां तक 30 होगा। नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रस्ट मी, नॉट अ प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम। अगर आपके एग्जाम में पुराना चार्ट आया तो डिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, नहीं आया तो हाइपोथेटिकली अपने मन से बना के बोलिए, एक्सेप्टेबल। एम आई क्लियर? नाउ apart from that apart from that something is written in the form of degrees। ये देख रहे हो 252 डिग्री, 072 डिग्री, 308 डिग्री। दिस इज नोन एज रेडियल। रेडियल मीन्स कि दिस रूट इज मेकिंग 252 डिग्री along with नागपुर। नागपुर के साथ ये वाला रूट 252 डिग्री बना रहा है। दिस रूट इज मेकिंग 289 डिग्री, this route is making 308 degree, this route is making 027 degree, so that is known as radial of this route। whenever you are flying here you can say route का call sign goal 450 and radial is 252, इसका रेडियल 073, ये वाले रूट का रेडियल 253। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर एयरक्राफ्ट हेडिंग और रेडियल ऑफ द रूट। अगर आप इस रूट पे फ्लाई कर रहे हो तो आपके एयरक्राफ्ट का एंगल क्या होगा? योर एयरक्राफ्ट्स एंगल विल ऑलवेज बी द रेडियल ऑफ दिस रूट। क्लियर? रेडियल समझ में आया? yes no? sir। Okay, now sometimes you may find कि एक साइड पे तो रेडियल लिख दिया, दूसरे साइड लिखा ही नहीं। अब क्या बोलेंगे? आपने कल ही हमने पढ़ाया था रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, मेक इट रेसिप्रोकल ऑफ इट। अगर इसका 027 डिग्री है, इसका रेसिप्रोकल बनाओ, क्या बनेगा? 180 डिग्री इसमें ऐड कर दोगे, कितना आएगा? 207 डिग्रीज। ठीक है, 207 डिग्रीज ये बन गया। उसके बाद एक अच्छा कैलकुलेशन बताऊंगा, वेट फॉर इट। बना 207 डिग्री। अभी देखो, किसी पॉइंट पे आपको पता नहीं चल रहा है कि उसका एंगल क्या होगा,
सपोज द पॉइंट इज डेल्टा। डेल्टा पे आपको पता नहीं चला कि ये वाले लाइन का रेडियल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला तो अगर एक एंड पे दैट इज 131, देन अदर एंड पे उसका रेसिप्रोकल होगा हमेशा। एक एंड पे अगर 308 है, देन दिस एंड होगा रेसिप्रोकल ऑफ 308। दूसरा सबसे निंजा टेक्निक क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको रेडियल निकालना है, पता नहीं चल रहा है, क्या करना है, ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब देखो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 0 0 0 डिग्रीज, दिस वन विल बिकम 9 डिग्रीज, दिस विल बिकम 180 डिग्रीज। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला रेडियल क्या है, तो 180 से 145 के बीच में, तो अगर आप यहाँ पे 135 डिग्री बोल दोगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप 135 डिग्री बोल दो, 145 बोल लो, 150 बोल लो, 160 बोल लो, नॉट अ प्रॉब्लम। उतना ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन कोई नहीं दिखेगा, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये वाला लाइन जो है ये अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा। सो 90 से 180 के बीच में कुछ भी बोल लो, बट दैट शुड लुक रियलिस्टिक। अगेन अब इसको 100 डिग्री मत बोल देना, नहीं तो फिर बोलेगा ये क्या है, या फिर 91 डिग्री मत बोल देना। ठीक है, इट शुड लुक रियलिस्टिक। अगर उसमें डिफरेंस रहता भी है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल 180 to 270। ठीक है, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल 270 to 360। ठीक है, सो सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर कहीं पे आपको रेडियल का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ मिल गया, देन वेल एंड गुड, नहीं मिला तुरंत फटाफट एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एज्यूम करेंगे कि वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है। तो जिस भी क्वाड्रेंट में पास करेगा उसके अराउंड हाइपोथेटिकल उसका एक एंगल हम लोग नॉमिनेट कर देंगे। अगर उसमें 5-10 डिग्री का उल्टा पुल्टा भी होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस पर। ठीक है, मैं क्लियर सो फार? यस सर। ओके, अब एक जगह है इबानी, जस्ट हैव अ लुक। इबानी, इबानी पे हमको पता करना है कि ये वाला रूट कितना रेडियल बनाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर दो कार्टेशियन प्लेन, देखो कितना बना, 180 के आसपास कुछ बन रहा है, रेडियल 170। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन के हिसाब से हमने फाइंड आउट किया कि ये रहा रेडियल 170, राइट। 342 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -180 यानी 162। कितने का डिफरेंस आया, 8 डिग्री का, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने 162 को 170 बोल दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। पक्का समझ में आ रहा है सबको? अमोल, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ, सो इफ समवेयर रेडियल इज गिवन, वेल एंड गुड। नहीं आया, अपने पास हमेशा अपना टूल है, क्या, फटाफट एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को एक्चुअल पास करवा के देखेंगे कि कहां से पास कर रहा है। तो जहां से पास करेगा उसके हिसाब से उसका एंगल एज्यूम करेंगे। ये अगर 180 है तो इससे थोड़ा सा डेविएशन कितना होगा, 170। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि इसको हम 91 बोल देंगे। ठीक है, so we need to draw the Cartesian plane and we can always find the radial of our aircraft, angle of our aircraft, heading of our aircraft at any point. ठीक है, now apart from these two, I think ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, नहीं तो आप लोगों का दिमाग कंफ्यूज होगा। ठीक है, बाय द वे चार्ट रीडिंग सेशन इज 2 days लेक्चर। ठीक है, लेक्चर प्लान में जरूर मैंने इसको 1 डे में डाल के रखा है, बट वेन एवर आई कंडक्ट क्लासेस आई प्रीफर इट फॉर 2 days। चार्ट रीडिंग टेक्निक्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एक दिन में ही कंप्लीट करते हैं तो आपके पास जो भी कंफ्यूजन है वो आप ही के पास रह जाएगा। ठीक है, बट
आई प्रीफर एनफ चांसेस फॉर एवरीवन कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास हार्ड कॉपी ऑफ दिस चार्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, हार्ड कॉपी इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, दिस चार्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म क्लियरली कि कब टावर को कॉल लगाएंगे, कब अप्रोच को कॉल लगाएंगे, इसको तो रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, वॉट एवर आई हैव टॉट टू यू, ठीक है. जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन एंड वेरी स्पेशल try to find the control area of every control boundary. ठीक है, सारे कंट्रोल्स का कंट्रोल बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि अगर आप इस लोकेशन पे रहोगे तो किसको कॉल करोगे. सपोज इस लोकेशन पे आप हो, किसको कॉल करोगे, ये जो ब्लू कलर का डॉट बना रहा हूं, हु इज गोइंग टू टेल, इस लोकेशन पे किसको कॉल करना है, रैंडम लोकेशन, मुंबई कंट्रोल को. वेरी गुड. नाउ अगर आप सबके कंट्रोल बाउंड्री को खुद से पेंसिल से लेके ड्रॉ करना अपने चार्ट पे, ठीक है, सारे कंट्रोल बाउंड्रीज का एरिया इनक्लोज्ड कर दो. ये सब अपना अपना एरिया बांट लिया, ठीक है, अहमदाबाद ने ये बांट लिया, दिल्ली ने ये बांट लिया, ठीक है, ऐसा ऐसा करके सारे कंट्रोल बाउंड्री को आप एक पेंसिल से इनक्लोज करके देखो. आपको सारे चार्ट्स में, ठीक है, सारे चार्ट्स में देखना, देखोगे आप क्या पाओगे पता है, कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है. एक एग्जांपल के लिए बना देता हूं, ये देखो रेड कलर का बाउंड्री वहां बना दिया, एक कोलकाता वाला यहां बना दिया. इस वाले एरिया को कौन पूछेगा, इस वाले एरिया को कौन पूछेगा, नियरेस्ट कंट्रोल, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट वाला. वेरी गुड. तो कौन सा नियरेस्ट, वाराणसी नियरेस्ट है कि कोलकाता नियरेस्ट है, कोलकाता. कैसे कैसे, सपोज एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा जूम करके, इधर कौन सा नजदीक है, वाराणसी की कोलकाता, बताओ. देखो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे है, अब बताओ. वाराणसी नजदीक लग रहा है. ठीक है, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज दिया कि आप सारे चार्ट्स को ऐसे ऐसे ड्रॉ करके देखो. लगभग 5 से 6 कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, ठीक है, सारे चार्ट्स को आप ड्रॉ करके देखो, सबका कंट्रोल बाउंड्री ऐसा इनक्लोज करके देखो कि कौन सा एरिया बच जा रहा है. 4 से 5 सारे चार्ट्स को मिला के बोल रहा हूं, ठीक है, सारे चार्ट्स को मिला के 4 से 5 ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं कि किसको कॉल किया जाए, यहां तो कोई बचता ही नहीं है, किसको कॉल करूं, ठीक है. तो वैसे वैसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को आप समराइज करके मेरे पास लाइए, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है, विद अ क्लियर लॉजिक, ठीक है, एक अच्छे लॉजिक के साथ मैं उसका आंसर करूंगा. बट पहले आपका वो काम है कि ऐसे सारे एरियाज को मेरे को हाईलाइट करवाइए. मुझे तो पता ही है कि किसको कॉल करना है, बट ये आपका एक्सरसाइज है, क्योंकि सडनली आपके सामने सपोज कि मैंने प्रैक्टिस करवाते करवाते इस वाले एरिया का प्रैक्टिस करवाना मिस कर दिया, तो मेरा एक मिस किया हुआ चांस आपके तो रिजल्ट पे बनाएगा. सो दैट इज योर प्रैक्टिस, आपका एग्जाम है, यू शुड बी मोर केयरफुल. मैं गलती करूंगा मेरा कोई लॉस नहीं, आप पीछे से 2 गाली दे के चल दोगे कि अच्छे से नहीं पढ़ाया, लेकिन आपका एग्जाम है, ठीक है. सो आप इन सारे चार्ट्स को लीजिए, पेंसिल उठाइए और ड्रॉ करिए कि यहाँ पे तो वाराणसी कंट्रोल, यहाँ पे कोलकाता कंट्रोल, यहाँ पे कौन, ठीक है. तो ऐसे सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और मुझे बताइए कि सर किसको कॉल करूंगा. लाइक क्या कहते हैं, मैं एक थोड़ा सा आंसर का हिंट भी देता हूं. ऐसा नहीं है कि मेरे को डाउट से एकदम भर देना है पता चले कल जब क्लास ओपन करूं तो टोटल 50-60 डाउट लेके आ गए, नहीं. अब देखो एक थोड़ा सा हिंट देता हूं. रांची इज एन ईस्टर्न एफआईआर प्लेस, ठीक है. सो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ईस्टर्न एफआईआर वाले को कोलकाता को कॉल करना है. वाराणसी इज इन नदर्न एफआईआर, देखो बीबीएन कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पे. तो एफआईआर बाउंड्रीज को भी कंसीडर करना है कि अगर रांची एयरपोर्ट ईस्टर्न एफआईआर का पार्ट है
अगर इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, विल प्रीफर ईस्टर्न। क्लियर? एवरीवन, इज दैट क्लियर टू यू नाउ? ठीक है. सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन हेयर टुडे फॉर यू ओनली. अभी आपके पास मैंने आज काफी जल्दी मैंने सेशन क्लोज कर दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ. आपके पास सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं. अच्छे से फोकस करके नजर डालिए कि सर यहाँ पे तो नागपुर टावर को कॉल लगा दिया, यहाँ पे तो नागपुर अप्रोच को कॉल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे तो नागपुर कंट्रोल को कॉल लगा दिया, यहाँ पे किसको कॉल लगाऊंगा? नागपुर कंट्रोल भी दूर है, कोलकाता कंट्रोल भी दूर है, किसको? ठीक है. तो ऐसे सारे डाउट्स मेरे पास लेके आने हैं. आप लोगों का ये प्रैक्टिस सॉरी एक्सरसाइज क्या कहते हैं, होमवर्क है वो, कि आप इन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करके मेरे पास लाइए. सारे कंट्रोल बाउंड्रीज को पेंसिल से ड्रॉ करिए तो पता चल जाएगा सबने अपना अपना एरिया बांट लिया, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन. ठीक है. ऐसे सारे डाउट्स मेरे पास लेके आने हैं आपको कल. और कल जब मुझे लग जाएगा कि यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट रीडिंग टेक्निक्स वेल, देन आई विल मूव अहेड. लाइक यहाँ देखो, यहाँ पे तो दिल्ली मुंबई का क्लियर क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर से. सपोज यहाँ पे एक खाली एरिया बन जाता कि ना वो कोलकाता में आया, ना वो दिल्ली में आया, ना वो मुंबई में आया, तो कहाँ जाएगा वो? ऐसे सारे एरियाज आपको मिलेंगे चार्ट्स पे. ठीक है. तो आप सारे चार्ट्स पे नजर मारिए, अच्छे से थॉरो पेंसिल उठाइए और थॉरो रीडिंग मारिए कि यहाँ पे रहेगा तो किसको कॉल करूंगा, यहाँ पे रहेगा तो किसको कॉल करूंगा. जो नहीं समझ में आया वो मुझे बताइए. इसके अलावे एक दो ऐसे एरियाज हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, जो मैंने बताया ही नहीं. ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये सब हम कल बताएंगे. ठीक है. आज के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. सो बेसिकली चार्ट रीडिंग टेक्निक्स आई एम गिविंग 2 days फॉर एवरीवन, 1 day फॉर थ्योरी एंड 1 day कंप्लीट प्रैक्टिकल. आपका अपना एक्सरसाइज, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो. यू शुड लुक्स कन्वर्जेंट विथ बोथ ऑफ द चार्ट. ठीक है. दोनों चार्ट को उठाइए और जितने सारे डाउट्स हैं आप मुझे बताइए. हो सकता है मैंने कुछ नहीं बताया हो आपको, जैसे ये मैंने नहीं बताया कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप कल मुझसे पूछना इसको क्या बोलते हैं सर. ठीक है. सो सच एक्सरसाइज इज विद यू ओनली. आई एम क्लोजिंग दिस सेशन हेयर ओनली and I'll hope कि you all will bring some good questions for me. ठीक है. Otherwise also आप नहीं लाओगे तो मैं तो बताऊंगा ही, but you should take this one priority. आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करो. Done? Done, sir. Completing this meeting here today only. We'll see you tomorrow 9 o'clock. Perfect. Good night everyone. Good night. Good night, sir.